یہ چوتھا سوال بھی ان کا ہے، کہتی ہیں میرا بھائی اور بیٹا جو امریکہ کی سوسائٹی سے بہت متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے ارکان، نماز، روزہ وغیرہ ان کی کیا ضرورت ہے، ویسے انسان اچھے کام کر لے، نیکی کے کام کر لے، وہی کافی ہیں۔ اچھا، لیکن یہ نیکی کا کام نہیں۔ اس سوال میں جو مضبوط بات ہے تو یہ ہے کہ اللہ سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کے احسانات کا شکر ادا کرنا اور اس سے فضل مانگنا، اس سے ہدایت مانگنا، اس سے اپنی خوبیوں میں ترقی کے لیے ترقی کی طریق ماں پوچھنا اور ان راہوں پہ چلانے کی طاقت مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری تو فضول بے معنی باتیں ہیں جو شرافت سے آ رہی ہیں۔ اور روزمرہ کی زندگی میں کسی کو برا نہ کہنا، کسی کے ساتھ رہنا، بس یہی شرافت ہے۔ اس سوال میں مضمر بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سوال کرنے والے دوست مرعوب ہیں غیروں سے، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں۔ جن معاشروں میں مذہب کا اثر اٹھا ہے، کیا وہاں شرافت باقی رہی ہے؟ جہاں مذہب موجود ہے اور مذہب کی حقیقت اٹھ گئی ہے، وہاں بھی شرافت باقی نہیں رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے نماز کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے بارہا فرمایا ہے کہ نماز تمہیں منکر سے روکتی ہے، تمہیں فاحشہ سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا وہ ہے جس کے اندر ایک غیر معمولی انسانی شرافت پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر بدی سے رکتا ہے۔ بس جو نمازیں انہوں نے کہیں دیکھی ہوں گی، میں نہیں جانتا کس کی دیکھی ہیں، اگر ان نمازوں کا اثر کوئی نہیں ہے، اگر انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ شریف ہے اور زیادہ گہرا ہے شرافت میں، میری شرافت پہ تو زلزلہ آئے تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، یہ ہر حال میں قائم رہنے والا ہے، تو پھر وہ سوچ سکتے تھے کہ یہ کون سی چیزیں ایسی کرتا ہے، کون سا جادو ہے اس کے پاس جس کے نتیجے میں اس کی شرافت کی عظمت مجھ سے بہت زیادہ وسیع ہے اور شرافت کا قد مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بھی بارہا سوالات کے جوابات میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے، شرافت کیا ہوتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی شرافتیں آپ کو دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں، یہ بہت سے عظیم مذاہب کے چھوڑے ہوئے نیک اثرات ہیں۔ وہ سوسائٹیاں جن میں مذاہب کے اثر نہیں ملتے، وہ بالعموم ہر قسم کی شرافتوں سے عاری ہو جاتی ہیں، سوائے اس کے کہ اقتصادی تقاضے ان کو بعض شرافت کے اصول کو اپنانے پر مجبور کر دیں۔ تو شرافت کا مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے۔ یہی صاحبزادے جو سوال کر رہے ہیں، ہرگز بعید نہیں کہ ان کو جو شرافت عطا ہوئی ہو ان کے ایسے والد یا والدین سے ہوئی ہو جو نمازی تھے، جو عبادت گزار تھے، ان کا دل متقی تھا اور اس کے نتیجے میں اپنے بچوں پر انہوں نے بہت گہرا اور نیک اثر چھوڑا ہے۔ اگر یہ کسی غیر عبادت کرنے والے ایک عامی شخص کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو پھر میں پوچھتا کہ ان کی شرافت کہاں گئی۔ انسان بہت سی باتوں میں مذاہب کا ممنون احسان ہے، اور جہاں سے مذاہب اٹھتے ہیں وہاں سے رفتہ رفتہ وہ شرافت کے عکس جو سوسائٹی پر پڑ چکے ہیں اور ان کا حصہ بن چکے ہیں، وہ مدم پڑھتے پڑھتے وہ پھر غائب ہونے لگتے ہیں۔ اب یورپ کی سوسائٹی ہے، یہاں جہاں بھی آپ کو اچھی باتیں ملیں گی وہ عیسائیت کی مرہون منت ہیں۔ آخر عیسائیت کو یہ کہہ کر کلیتاً رد کر دینا کہ اس میں انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، اس لیے ناجائز ہے کہ اس کے باوجود قرآن کریم بعض عیسائیوں کی تعریف بھی کرتا ہے اور خود ان کو اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر مذہب کی عام انسانی اخلاقی تعلیمات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اسی لیے ایک دفعہ ایک ملک کے وزیر تعلیم نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم اپنے نصاب میں دینی تعلیم رائج کرنا چاہتے ہیں، لیکن خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مختلف مطالبے ہوں گے، کہیں سے کوئی مطالبہ شروع ہو جائے گا تو ہم کیا جواب دیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات کھل جائے گی کہ مذہب کے دو حصے ہیں، ایک ہے نظریات کی دنیا، ایک ہے روزمرہ انسانی تعلقات کی دنیا۔ نظریات کی دنیا میں مذاہب میں
पहले अगर नहीं भी थे तो आज बहुत शदीद इख्तलाफ पाए जाते हैं, क्योंकि ये अकायद हैं जिनको अमूमन बिगाड़ा जाता है और अखलाकी तालीम को बहुत कम बिगाड़ा जाता है। इसलिए गए गुजरे बिगड़े हुए मज़ाहिब में भी जो रोज़मर्रा की अखलाकी तालीम है उससे हाथ नहीं खींचे गए। सच बोलने की तालीम है, खा वो सच बोलें या ना बोलें, मगर ये तो नहीं कह सकते एक बिगड़े हुए ज़माने में जाकर के ईसाइयत झूठ बोलने की तालीम देती है, यहूदियत झूठ बोलने की तालीम देती है, हिंदुइज्म झूठ बोलने की तालीम देता है, कन्फ्यूशनिज्म झूठ बोलने की तालीम देता है, तकब्बुर की तालीम देता है, चोरी की तालीम देता है, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। बाज़ दफ़ा लोग बहुत ही ज़्यादा जब उनके जहन टेढ़े हो जाते हैं तो बाज़ गलत बातें अपने मज़हब की तरफ मंसूब कर देते हैं। मसलन यही तफ़हीमुल कुरान है जिसका आपने जिक्र किया है, इसमें आप देखेंगे आगे तो अजीब गरीब बातें आपको मिलेंगी जिनका इखलाक बिगाड़ने से ताल्लुक़ है। और दूसरी साहब ने यह भी लिखा है कि बाज़ सूरतों में झूठ ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाता है। तो जहाँ मज़हब की बुनियादी उखेड़ दी जाए, झूठ ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाए, ये इत्तफाकी इस्तिस्नात हैं जो कभी कभी ऐसी फ्रीक्स पैदा होती हैं। मज़हबी दुनिया में, उलमा की दुनिया में अजायब भी पैदा होते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं रोज़मर्रा के मुसल्लमा उसूल की बात कर रहा हूँ कि मज़हब बिगड़ भी जाएं तो आखिर उनकी जो अखलाकी तालीम है वो फिर भी किसी न किसी हद तक सोसाइटी में सरायत करती है और बहुत सी बदियों से रोकती रहती है, मगर उस वक्त तक जब तक खुदा पर ईमान कायम रहे। जब खुदा पर ईमान उठना शुरू हो जाए तो फिर मज़हब उनकी कोई हिफाजत नहीं कर सकता, और वो सबसे ज़्यादा भयानक वक्त है जिसके बाद जराइम हर हद से पार उतर जाते हैं। तो ये वो लंबा और गहरा इबादत का फ़लसफ़ा है, ताल्लुक़ बिल्ला ही है जो आपके अखलाक को बुलंदी अता फरमाएगा। इबादत ही के नतीजे में मजहबी तालीम पर अमल करने की तौफीक मिलती है। खुदा के तसव्वुर को जितना आप दिल से मिटाएंगे या मद्दम करेंगे उतना ही आपकी शराफत भी मिटती चली जाएगी या मद्दम होती चली जाएगी। अल्लाह तो अखलाक के लिए उस बर्थ मार्क की तरह है जिसके मुतल्लिक डॉक्टर यही जानते हैं कि एक दफ़ा बन जाए पैदाइश से पहले तो फिर मिटा नहीं करता। इस पर एक साइंसदान के मुतल्लिक एक बहुत दिलचस्प कहानी भी लिखी गई है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। कहते हैं एक साइंसदान को एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हो गई जिसके चेहरे पर एक बर्थ मार्क था, यानी मुट्ठी जब वो पैदा होने से पहले यूं गाल से लगी हुई थी तो वहीं जमकर वैसे ही निशान छोड़ गई, और हर लिहाज से वो कामिल तौर पर खूबसूरत, बेहद बाअखलाक, आवाज़ के लिहाज से, बाकी नकूश के लिहाज से वो उसके तसव्वुर की आखिरी हदों को छू रही थी, लेकिन बर्थ मार्क उसको तकलीफ देता था। तो उसने फिर बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और आखिर वो दवाई ईजाद की जो उसके नुक्ता नज़र से बर्थ मार्क को मिटाने में कामयाब हो सकती थी। वो यूं उसका अंजाम दिखाया गया कि फिर वो बच्ची ने, उसने कहा भी कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है इसकी, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, आप इसको मिटाने की कोशिश न करें। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। चुनाचे फिर उसने दवाई खिलाई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको लिटा कर देखता रहा, नक्श मिटना शुरू हो गया, मध्यम पड़ता चला गया, यहाँ तक कि जब वो नक्श गायब हुआ तो उसकी रूह जिस्म से परवास कर चुकी थी। तो खुदा की हस्ती अखलाक के लिए वैसा ही असर दिखाती है। बाकी सारे अखलाक फर्जी और महज सती चीज़ें हैं। यही कौमें जिनके अखलाक से मुतासर हुए हैं, देखते नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। जितने जराइम अमेरिका में हैं शाज़ व नादिर किसी और मुल्क में होंगे, गालिबन नहीं हैं। हर किस्म के जुल्म और सितम, हर किस्म की खुदगर्जी और बेहयाई, और कौमी सतह पर भी जब ये उभरती है तो उससे गल्फ वार पैदा होती है या वियतनाम निकलता है। कहाँ गए वो अखलाक? जो खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं उनकी कौमी सतह पर यह सोच नहीं हुआ करती। उनके अदल का एक ऐसा गैर मुतज़लज़ल मकाम होता है जो किसी दुनियावी मनफियत की खातिर मिटा नहीं करता
इंसान का साथ नहीं छोड़ता, किसी जलजले से उसकी बुनियादें नहीं उखड़ती। बस वो खुदा ही की ज़ात है जिस पर तमाम अखलाक की बुनियाद है और दायम रहने वाले अखलाक हैं। फिर ये कौन सी शराफत है कि जिसने पैदा किया, जिसने सब कुछ बनाया, जिसके कायनात के निज़ाम से जो निज़ाम इसका रिज़्क़ का जारी हुआ है, अपने हर लिहाज से फ़ायदे उठाए, अमेरिका पहुँचे, और जब उसका नाम आए तो हर दूसरे मालिक के सामने झुकने पर तैयार, मगर वहाँ कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है। मेरा बॉस जो मुझे तनख्वाह दे रहा है, जिसका मैं काम कर रहा हूँ, 8 घंटे आपसे मेहनत लेता है और फिर जाके आपको रिज़्क़ अता करता है, और वो देता है जो उसमें से कुछ भी उसने खुद नहीं बनाया हुआ। किसी रिज़्क़ के से अगर अल्लाह अपना हाथ खींच ले तो हाथ से जाता रहता है। खेती आप लगाते हैं, जो चाहें कर लें, अगर खुदा की रहमत का हाथ मुसलसल उस पर सायादार न रहे, एक लम्हा के लिए भी उठे तो अचानक यालावारी हो जाती है और वो खेती का सब कुछ जो फल है वो आपके हाथों से निकल जाता है। तो सोचें कि अल्लाह की रहमत ही है जो सहारा दिए हुए है ज़िंदगी को, वरना एक लम्हा के लिए भी वो रहमत उठे या उसके वो कानून जो इंसान की हिफाजत कर रहे हैं वो खींच लिए जाएं, उनमें से एक भी खींच लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो जिसके सबसे ज़्यादा एहसानात हैं उसके लिए 10-15 मिनट के लिए 5 मरतबा खड़ा होना तो दूबर है, और जिनके मामूली एहसानात हैं और जितना देते हैं फिर वो नचोड़ते भी हैं उससे, उनका बड़ा एहसान है। उनकी खातिर आप 8 घंटे खड़े भी रहें तो कोई तकलीफ नहीं। फिर ये भी तो सोचें कि अगर ज़िंदगी यही मर जाने का नाम है तो अखलाक के क्या माने हैं? फिर कुछ भी नहीं, बेवकूफ़ी है फिर अखलाक। फिर जिसका दाव जिस हद तक चलता है उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़िंदगी अगर मरने के बाद सज़ा जज़ा का निज़ाम पेश नहीं करती और मरने के बाद एक और तरक्की की दुनिया में दाखिल होने का पैगाम नहीं लेके आती तो ये मुहम्मल है, बातिल है, बेमानी है। बस जहां जाना है उसके लिए कोई तैयारी नहीं। इबादत क्या है? इबादत से अल्लाह ताला से वो तरीक़े सीखे जाते हैं जो उसको पसंद आए। उसके जिक्र से इंसान अपने नफ्स की इस्लाह करता चला जाता है और एक ऐसा बेहतर इंसान बनता चला जाता है जिसके अंदर एक पाकीज़ा सेहतमंद रूह भी तैयार हो रही है। ये इस दुनिया की शराफतें, ये सेहतमंद बदन तो यहाँ रह जाएंगे, वो रूह जो माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तरह आपके वजूद में पल रही है, अगर इबादत नहीं करेंगे तो वो मुर्दा रूह पैदा होगी, उसमें कोई जान नहीं होगी। अगर होगी तो एक बर्थ मार्क नहीं, वो तो दाग दाग होकर निकलेगी और वही अजाब है। एक बर्थ मार्क अगर एक लड़की के खामन को तकलीफ दे सकता है तो जिसका बदन दाग दाग हो वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए एक महज अजाब है। तो अगर खुदा है तो फिर ये सवाल नहीं आप उठा सकते कि उससे मैं क्यों ताल्लुक़ कायम करूं, इसलिए कि उसी ने आपकी दुनिया को जीनत बख्शी, उसी ने आपको खूबसूरत शक्ल सूरत अदा की, और वही है जो आपकी रूह को जीनत बख्शेगा और उसे सजाएगा, और उससे मदद मांगे बगैर, उससे ताल्लुक़ कायम किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर वो सुन रहे हैं तो समझ जाएंगे, अगर नहीं समझ रहे या सुन ही नहीं रहे तो फिर अल्लाह ही है जो उन पर रहम फरमाए, क्योंकि जो इबादत नहीं करता उसकी रूह मुर्दा रहती है। और